आदाब नाजरीन, जेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी वजीर रियासत आंध्र प्रदेश ने रियासत भर में 55,607 आंगनवाड़ियों में दाखिला लेने वाली 3,16,000 ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहतमंद मुतनासिब खाने की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए वाईएसआर संपूर्ण पोषण का आगाज़ किया। వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ పథకాన్ని ఈరోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. తల్లులకు పోషణ, పిల్లలకు సంరక్షణ, చదువుల్లో ఒక విప్లవం ఈ లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం. రాష్ట్రంలో 55,607 అంగన్వాడీల పరిధిలో నమోదైన గర్భవతులు, బాలింతలు, చిన్నపిల్లలు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సంపూర్ణ పోషణ పథకం అందించే కార్యక్రమానికి ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. మొత్తంగా రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 30,16,000 అక్క చెల్లెమ్మలకు, చిన్నపిల్లలకు ఈ కార్యక్రమం వల్ల లబ్ధి జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో ఒకసారి గమనించినట్లయితే గిరిజనేతర ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా 47,287 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఈ అంగన్వాడీల పరిధిలో దాదాపుగా 26,36,000 మంది తల్లులైతేనేమి, పిల్లలైతేనేమి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు దానితో పాటు నెలకు సరిపడే నెలవారీ పౌష్టికాహారం అందించడం కోసం ఏకంగా 1,556 కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతా ఉన్నాం. అలాగే అక్కడ అక్క చెల్లెమ్మల్లో రక్తహీనత కూడా ఎక్కువే, పౌష్టికాహారం లోపం మరింత ఎక్కువగా ఉన్న విషయం కూడా గమనించి వారి కోసం వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం ప్లస్ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమంలో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే సంపూర్ణ పోషణంలో ఇచ్చే వాటికంటే కొంచెం ఎక్కువగా వీరికి అందజేస్తాం. మొత్తంగా ఇవి 77 మండలాలు, ఈ గిరిజన మండలాలు, ఈ 8,320 అంగన్వాడీల పరిధిలోకి ఇవి వస్తాయి. తల్లులు అయితేనేమి, పిల్లలైతేనేమి మొత్తంగా 3.8 లక్షల మంది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణం ద్వారా అక్కడ వాళ్లకు మేలు జరుగుతుంది. దీనికోసం మరో 308 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయబోతా ఉన్నాం. మొత్తంగా 1,863 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఖర్చు చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి సంతోషంగా కూడా చెప్పాలి. इंचार्ज वजीर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टी श्रीनिवास यादव ने बेगम बाजार उस्मानगंज नाले के तरक्याती कामों का मुतल्लिका महकमा जात के अहदेदारों के हमरा जायजा किया। వ్యాపారం చేసుకుంటారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఏదైతే మన కార్వాన్ ప్రాంతం నుంచి, గోల్కొండ ప్రాంతం నుంచి ఏదైతే నాలా వస్తుందో ఎగ్జిస్టింగ్, అది ఏమైపోయిందంటే 70-80 సంవత్సరాల కాలక్రమేణా దాని సర్వీసు, దాని ఎంతైతే స్ట్రెంత్ తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. అయితే మన జోనల్ కమిషనర్ గారు, ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు, ఎస్ఆర్టీపీ వాళ్ళు ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని ఆ వర్క్ అంతా చేసుకుంటూ వస్తాం. బట్ ఈ మార్కెట్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మధ్యలో ఏవైతే ఇవి ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేస్తాం. అవి ఎవరా ఏందా అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టు కాదు. ఇప్పుడు ఏ నాలా పోయి మూసీ రివర్లో కలుస్తుంది, టూ వర్డ్స్ గౌలిగూడ నుంచి నీకు మూసీ రివర్లో కలుస్తుంది.
అయితే ఏవైతే నీకు అడ్డంగా ఈ షాపులు పెట్టడం మూలాన స్టాగ్నేట్ కావడము, రివర్స్ కావడము, లేకపోతే ప్రాపర్గా మూవ్ కాకుండా పోవడం మూలాన ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఏదైతే ఆ రోజు మనం ముందు ఒక బడికి తీసేసినామో సేమ్ మన నాలా సైజ్ ప్రకారం ఇవన్నీ తీసేస్తాం. మా టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ గారు కూడా అందరికీ నోటీసులు ఇస్తారు. దీంట్లో ఎట్లా కాంప్రమైజ్ అయ్యే సమస్యనే లేదు, నిర్దాక్షిణ్యంగా అన్ని తీసేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రజల కన్వీనియన్స్ అనేది ముఖ్యం. ఒక మార్కెటే కాకుండా ఇక్కడ చాలా జనవాసాలు ఉన్నాయి, ప్రజలు ఉన్నారు ఈ లైన్ అంతా. మొన్న కూడా అక్కడ మన గురుద్వార పక్క నుంచి పోతే కూడా ఆ అడ్డుగా నాలల మీదనే ఇండ్లు కట్టడం మూలానే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. రేపేమవుతుందంటే బాగా భారీ వర్షాలు వచ్చిన తర్వాత రివర్స్ కొట్టి లేనిపోని సమస్యలు వస్తే ఊరికేనే జిహెచ్ఎంసీని బ్లేమ్ చేయడం ఇటువంటి జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి నాలాల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలౌ చేసే సమస్యనే లేదు, చాలా సీరియస్గా ఉంటాం. आज तेलंगाना में अनलॉक 4 के बीच असम्बली का पहला इजलास, जिसमें वज़ीर आला के हमरा तमाम रियासती वज़रा बशमूल रियासती रुकन असम्बली ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के देहांत पर खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा क़ादरी रुकन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जमात की जानिब से खराज तहसीन पेश की। जनाब स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से जो क़रारदाद ताज़ियत पेश की गई, मैं उसकी तायद करता हूँ और हमारे मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी साहब के देहांत पर अफसोस का इजहार करते हुए ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के कई वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, जिसमें से 4-5 वज़ीर आज़म के कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी साहब एक ज़िम्मेदार हैसियत से मिनिस्ट्री में फाइज थे और वो हर पोर्टफोलियो पर बेहतरीन खिदमत करते रहे। 2012 से 17 तक मुल्क के सदर जमहूरिया के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फाइज रहे। प्रणब मुखर्जी साहब 1935 में जिसकी पैदाइश हुई और 2020 में जिसका इंतकाल हुआ, इस तवील अरसे में उन्होंने बेशुमार खिदमत अंजाम दिए और मुतादिद मरतबा इंतखाबात में मुंतखब होते रहे अवाम की खिदमत के लिए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं उनके फ़र्द ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ और क़रारदाद ताज़ियत की तायद करता हूँ। शुक्रिया। CCA शमशाबाद की बेहतरीन कार्रवाई के नतीजे में मकान से सरखा करने वाली 2 रुकनी बैन रियासती टोली का सैबराबाद ने पर्दाफाश किया। सदर कुल हिंद सूफ़ी उलमा काउंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी की क़ियादत में एक वक्त सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए यादाश्त पेश की। बादशाह चेयरमैन सलीम ने काउंसिल के मुतालबात पर कफन दफन के लिए और लावारिस की शर्त को बर्खास्त करने का ऐलान किया। जो है सदर आल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और कारगुजार सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत अवामुन्नास को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि आज हम मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड से एक जो है ज़िम्मेदार असाब के साथ हमने गुफ्तगू की। हमारा जो है अहम तरीन मतालबा था जो 2017 से चल रहा था, वो जिसको जो है अभी तक तकमील नहीं किया था, उनको बयान किया गया। हमारा सबसे अहम तरीन मसला ये है
कि वक्फ बोर्ड जायदादें डेवलप कर सकती है, लेकिन आप जायदादें डेवलप करके आप फर्स्ट प्रीफरेंस मुसलमानों को दीजिए, सेकंड प्रीफरेंस में नॉन मुस्लिम को दीजिए। उन्होंने जो है इत्तेफाक किया है और वो मसला जो है वक्फ जो है बोर्ड में जो है पेश होगा। और उसके बाद हमें दूसरा मसला उनसे हम ये लगाए कि जो गवर्नमेंट तेलंगाना में करीमनगर, वरंगल, खम्मम वगैरह इन मुकामात पे जो जायदाद वक्फ की एक्वायर की है, लाखों रुपए वहाँ जमा है, लेकिन वक्फ बोर्ड परस्यू नहीं कर रहा है और वो पैसे भी नहीं ले रहा है। आप पैसे लीजिए, अंडर ऑब्जेक्शन लीजिए, और अगर आप अंडर ऑब्जेक्शन लेंगे तो वो तकमील होंगी, समझे आप, और उसके बाद पैसे भी वसूल होंगे और जो उसका काम आप वक्फ बोर्ड का कर सकते हैं। और उसके बाद हम तीसरा मसला भी है कि बाद ऐसी शख्सियतें हैं जो सियासी एतबार से काबिज़ हो गई है, और लेकिन वक्फ बोर्ड जो है कि साबिका चेयरमैन साहब जो है उसको जो है उन्होंने जो है कोर्ट के हवाले किया था, लेकिन आज जो है वक्फ बोर्ड परस्यू नहीं कर रहा है। तो हम उनसे ये कहें हम कि आप जो है परस्यू कीजिए, खुसूसन दरगाह हज़रत शाह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और के समझे ताल्लुक़ से हमने बयान किया है। और उसके बाद हम ये भी बोले हैं कि अंजुमन दस्ती पाजा बाफ़ी की करोड़ों की जायदाद है, वक्फ बोर्ड का स्टाफ जो सही तरीके से उसको इंतज़ाम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को फ़ायदा नहीं हो रहा है और सियासी असर की वजह से नुकसान हो रहा है। और हम जो है वक्फ जायदादों के सिलसिले में ख़बरस्तानों को प्रोवाइड करने की बात भी की है। उन्होंने जो है बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, तयक़ुद दिया कि मैं जो है तैयार हूँ, और ये मसाइल मिल्लत के मसाइल है, ना आपके मसाइल है ना मेरे मसाइल है, और ना मेरा कोई शख्सी मसला है। तो हमने जो है उनसे कहा है कि हम लोग दस्ते ताउन दराज करते हैं और हैदराबाद की मुख्तलिफ़ तंजीमें हमारे से वाबस्ता हैं। हम जो है ये मिल्लत का अहम तरीन काम करेंगे। बाकी मसाइल पे तो हमारे ख़ास कर रहे हैं कि वो जो है हेल्प लाइन से इस्तेफ़ादा करें, और गरीब मैयत जो जिनका इंतकाल हो जाता है, आप लोग जो है हम मेरे से रब्त पैदा कर सकते हैं, हमारे खैरुद्दीन साहब से रब्त पैदा करते हैं, और हमारी जमात के लोगों को भी हम वो बोलेंगे आप रब्त रख के आप जो है ये काम करें, ताकि जो है इसका फ़ायदा जो है मिल्लत को हो। खुदा हाफ़िज़। मौलाना लोग जो है आए, उन लोगों के जो मसाइल है, जो वक्फ बोर्ड से जो कोताहियाँ हो रहे, तो उसके बारे में जो है ना हमारे कुछ स्टाफ में जो काम बराबर तरीके से कोई नहीं सुने, तो उसके बारे में जो है आके हमको रिप्रेजेंट दिए, मेमोरेंडम दिए, उस पर बहुत अच्छी तजवीज़ भी दिए। वो तजवीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड में भी लाएंगे कुछ चीज़ों को। कुछ जो है ना वो आप क्या बताए हो, नहीं लावारिस का कोई शर्त नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो 5,000 रुपये जो मैयत फ़ंड जो दे रहे, उसमें मीडियम क्लास रहो या गरीब आदमी रहो, कोई भी रहो, क्योंकि बाज़ वक़्त मीडियम क्लास के घर में भी पैसे नहीं रहते, 500 रुपये 1,000 रुपये रहते, कफन दफन को तो 5-7 हज़ार रुपये लगते ही। तो इमीडिएट कोई भी रहने दो, कुछ गलत फहमियाँ लोगों को है तो उसको दूर कर लीजिए। 5,000 रुपये इमीडिएट वक्फ बोर्ड पे, अगर किसी का ने भी अगर कुछ ऐसी बात है तो बराबर वक्फ बोर्ड हमारा इंस्पेक्टर, हमारा आदमी हेल्थ वैक्स से जो है ना आकर जो है ना वहाँ पर जिसके घर में मैयत है वहाँ पर बराबर पहुँचाएंगा। अगर आप लोग किसी को भिजाए भी तो ठीक है, नहीं भी भिजाए तो वहाँ पर लाकर स्पॉट पे पैसे पहुँचा देंगे, कोई उसमें शरायत नहीं है। इंतकाल हुआ उसमें उन्होंने अपने मजबूरी में परेशानी में रहते हैं, अब उसके कुछ फ़ोटो ले वो ले आधार कार्ड वो सब ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वहाँ स्पॉट पर आकर वहाँ पर ये करेंगे आप। और जितने कब्रस्ताना हैं तेलंगाना स्टेट में फ्री तदफीन देना बोल के मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये आप लोगों को मुतवल्ली साहिबान को और कब्रस्तान कमेटियों से मेरी अपील है कि आप लोग इसको दूरी मत करिए, क्योंकि कोविड बोल के आप लोग एक अछूत बना दे रहे बस मैयतों को, वैसा नहीं है। कोविड है ठीक है, मगर कोविड से क्या है, कैंसर को देते हैं और मैयत हो गई तो वहाँ पर दफना दे, तो कोविड का क्या है वहाँ पर, समझे। अब बाज़ों को निमोनिया से मर जाता आदमी तो उसको क्या नहीं देते, अरे देना भाई। ज़मीन में जाने के बाद अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की ज़मीन है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड खुद बोल रहा है कि दो मुतवल्लियाँ अपने रुआब से जो ना कोई भी फ़ोन करो नहीं देते बोले तो
मेरी आवाम से अपील है, जो भी नहीं दे रहे इमीडिएट एप्लीकेशन दीजिए। फ़ोन करके बोलने से एक्शन नहीं होता, वो मुतवली के ख़िलाफ़ हो या क़ब्रिस्तान कमेटी के ख़िलाफ़, या एप्लीकेशन दीजिए मेरे को, मेरे हाथ को ला के दीजिए। इंशाल्लाह उस दिन देखिए आप, सेकेंड डे हम उस पर एक्शन कैसा लेते हैं। और जहांगीर पीरों की दरगाह में भी जो है ना टॉयलेटों का उसका बोल के हमको कंप्लेंट है। इंशाल्लाह ताला टॉयलेट्स वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड से पैसे खर्चा कर हम लोग जो है ना, ये कोई भी हरासमेंट कर रहे फूल वाले हो या कुछ भी हो, उन लोगों को भी जो है ना हम लोग एक्शन लेंगे, पुलिस में कंप्लेंट देंगे उन लोगों के खिलाफ भी। क्योंकि जहाँ जहाँ भी दरगाहें हैं, यूसुफ शरीफ बाबा की दरगाह है या कोई भी कहीं भी बड़े पहाड़ की दरगाह है, जहाँ जहाँ पर भी तेलंगाना स्टेट में है, वहाँ पर बेहुरमती नहीं होना है। ये अल्लाह से डरो। कोरोना वायरस भी आया तो अभी भी डर नहीं है तुम लोगों को। अल्लाह ऊपर बैठे हुआ, अल्लाह हर चीज़ को देख रहा, अल्लाह ताला शारक के करीब है अपने। अल्लाह से डरो यार, अल्लाह से डर के काम अच्छे करो, ये बदहज़मी मत पैदा करो। और बेगम बाज़ार फैलखाना में तकिया कबीरुल शाह कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बावजूद 1 महीने से कब्रिस्तान की गेट लगाने की कोशिश जारी, पर इलाका पुलिस और कॉरपोरेटर शंकर यादव की मज़ाहमत जारी। अस्सलामुअलैकुम। ये बेगम बाज़ार फिलखाना रंगाचारी रोड जिसको बोलते हैं, यहाँ पर तकिया कबीरुल शाह का गिरेवाड़ है और सामने दरगाह शरीफ भी है और बकरीद के तीसरे दिन उर्स भी होता है यहाँ पर। हम GHMC को अपील कर रहे थे कि भाई हमारे को गेट लगाना है वहाँ पर, क्योंकि हमारे को कभी भी जहाँ मौत आई कुछ भी आई तो हमको क्या है डोला अंदर ले लेना बोल के हम ये चाह के GHMC को हम बोल रहे थे ये कि भाई ये GHMC वाले नहीं कर रहे तो फिर हम वक्फ बोर्ड को डाले। वक्फ बोर्ड वाले लेटर दिए कि भाई आप अपनी गेट अपनी प्रॉपर्टी पे लगा सकते बोल के। हम लगाने के लिए तैयार हो रहे तो BJP के कारपोरेटर शंकर यादव साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा होना बोल के उन्होंने ज़बरदस्ती से काम रुका रहे, जबकि गिरेवाट के ऊपर कोई कुछ नहीं है, तकिया कबीरुद्दीन के ऊपर कुछ नहीं है, गिरेवाट का कोई मसला नहीं है। पुलिस और अपने शंकर यादव साहब दोनों मिलके इसको काम को रुका रहे। दीवार तोड़ के कितने दिन हो रहा? दीवार तोड़ के 1 महीना होगा, ज़बरदस्ती के दीवार तोड़े और तोड़ के बोलते कि भाई मैं टॉयलेट या बनाऊंगा पूरे अंदर ही। कि भाई क्यों मनाते भाई, मुस्लिम प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, किसी भी मजहबी जगह पे ये चीज़ा नहीं रहना बोल के इनको बुला के ये भी बोले हम सुप्रीम कोर्ट का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी है कि भाई ये मजहबी चीज़ों पे ये नहीं रहना। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करे इसके लिए? कंप्लेंट दिए, सौंप दिए, सर्कल साहब मान रहे हैं बात को। और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब आने के बाद में उनको भी बोल रहे कि भाई कोर्ट का मसला है। वो तो कोर्ट किसके ऊपर है साहब? कोर्ट तो हमारी प्रॉपर्टी। NRC की कार्रवाई शहर हैदराबाद से शुरू करने के लिए BJP MLA राजा सिंह ने अमित शाह को किया ट्वीट। राजा सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की कि वो NRC की अमलावरी का आगाज़ हैदराबाद से करें। और राजा सिंह ने दावा किया कि हैदराबाद में रोहिंग्या लोगों का एक YouTube चैनल भी है। ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल हैदराबाद को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।